Dear students, today we are going to discuss another topic of physics of class 10th, that is linear magnification produced by lenses. This is an important topic as far the numericals are concerned. So, linear magnification, dear students, first point you had to note here is that it gives a relation. It gives a relation between size of image to with respect to size of object. The first point is you have to note here that it is actually it is a numerical physical quantity. It is a numerical physical quantity, or you can say it is a unitless. It is a unit less physical quantity, as uh, it has no units because it is the ratio of two quantities of the same kind, or you can say it is the ratio of similar quantities. That is why it has no ratio, and it is defined as, means linear magnification of lens is defined as ratio of the is defined as ratio of height of image to the height of object, and it is denoted by small m. The linear magnification is denoted by small m and is defined as it is the height of image produced by a lens to the height of object. If we take height of their students height of image as hi and height of object as ho, then the equation becomes here linear magnification m will be equal to hi divided by ho. In It is also defined as, means the linear magnification is also defined as m. We can it also define as, it is defined as image distance. It is defined as image distance divided by object distance. So if we take image distance here v and object distance u, then m will equal to v by u. If we combine both these equations, then m will equal to hi divided by ho will equal to v divided by u. You have to memorize this equation, क्योंकि अक्सर ये जो कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स से हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते थे. ओनली डिफरेंस बिटवीन, अगर आप देखो कि जो मिरर्स में हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स में, वहाँ पर माइनस साइन आता था, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता. बाकी वही सेम डिफरेंस डिफिनीशन यहाँ पे है. And after that, we could define here is significance of this linear. देयर स्टूडेंट्स में हमें दो चीज़ें याद रखनी है. m जो है एक इसका साइन, एंड देयर स्टूडेंट दूसरा वैल्यू, m का वैल्यू. जो साइन इंडिकेट्स डियर स्टूडेंट्स नेचर ऑफ इमेज. it indicates nature of image. मीन्स क्या इमेज रियल होगी वर्चुअल होगी, डिसाइड एम का साइन करता है. इस तरह इसका वैल्यू क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि इमेज डियर स्टूडेंट्स वो सॉरी डिमिनिश्ड होगी, इमेज क्या डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी या सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे साइन की तरफ आएंगे. साइन में दो केसेस है इसके. फर्स्ट केस जो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि m का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा. इफ m इज पॉजिटिव,
और m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप यहाँ पे देखेंगे m किसके बराबर है, m इज इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एज फॉर दिस साइन कन्वेंशन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा, हाइट जो होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर अब डियर स्टूडेंट्स m का वैल्यू पॉजिटिव है तो डैट मीन्स फिर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि तब जाके m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस डैट मीन्स एच आई विल पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ये पॉजिटिव है, अगर आप m पॉजिटिव हो गए तभी पॉजिटिव होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी तो डैट मीन्स अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी तो इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स, द इमेज इज फॉर्मड, दैट मीन्स इमेज इज फॉर्मड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इमेज बनती है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो डियर स्टूडेंट्स वो इमेज होती है वर्चुअल। तो यहाँ पे फिर इमेज होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट as virtual image is erect. So that means if m is positive, first point you have to remember here, if m is positive then the image will be virtual and erect. Now the second case, if dear students m is negative, अगर m नेगेटिव होगा तो m is height of image divided by height of object. height of object is always positive. अगर अब m नेगेटिव है तो डैट मीन्स यहाँ पे फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर इमेज बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो इमेज और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ये मतलब दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेज तो हमेशा रियल होती है। इसका ये मतलब हो डियर हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। ये तभी पॉसिबल है तब अगर रियल इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो सेकंड पॉइंट, इफ द इमेज इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन होगा, इमेज विल बी डियर स्टूडेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव साइन वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नेगेटिव साइन रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ उसकी वैल्यू की तरफ आते हैं। फिर से इट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम कैन बी, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे या एम 1 के बराबर होगा और एम इज ग्रेटर देन 1 और एम इज लेस देन 1, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। इट इज द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। और जब भी हम ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स लेते हैं, चाहे पॉइंट साइज क्यों ना लेंगे ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ तो इसके डायमेंशन, कुछ ना कुछ उसका साइज होता है। और इसी तरह जब इमेज बनती है चाहे वो पॉइंट साइज इमेज क्यों ना हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होते हैं, कुछ ना कुछ साइज होता है। इसलिए यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू है 0 का यहाँ पे चांस नहीं है, एम का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पॉइंट साइज इमेज या ऑब्जेक्ट होंगे कुछ ना कुछ वहाँ पे डायमेंशंस होते हैं। मीन्स अगर एम 1 के बराबर है तो डैट मीन्स फिर हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इंक्रीज द रेशियो, ये तभी 1 के बराबर होगा जैसे कि 7/7, जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होंगे तो डैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहीं पे भी अगर न्यूमेरिकल में हमें एम का वैल्यू 1 निकलेगा तो डैट मीन्स वहाँ पे इमेज का साइज सेम होगा डैट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस फर्स्ट केस। अब सेकंड की तरफ आते हैं, m इज ग्रेटर देन 1, और देखो ये ग्रेटर देन 1 का बनेगा, मीन्स इस तरह का फ्रैक्शन होगा 8/2, यही तब ग्रेटर देन 1 होगा जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा। दैट मीन्स एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। ये तभी जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा, तब ये ग्रेटर देन 1 होगा। एंड एच आई, व्हाट इज एच आई? इट इज द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट द इमेज विल बी magnified. The image will be magnified here. The image will be magnified, and if m is less than 1 तो that means इस तरह का फ्रैक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स 2/5, यानी कि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा। that means यहाँ पे एच ओ विल बी ग्रेटर देन एच ओ आई, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। तो डैट मीन्स वहाँ पे फिर इमेज डिमिनिश्ड होगी, इमेज यहाँ पे डिमिनिश्ड होगी। एंड इन दिस केस जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज नोन एज डियर स्टूडेंट्स डिमैग्निफिकेशन। जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस डियर स्टूडेंट्स डिमैग्निफिकेशन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट मैग्निफिकेशन। नाउ यहाँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
concave lens always produces, dear students, please note this point. Concave lens always produces images that are upright, virtual, reduced in size, and located on the object size of the lens. Therefore, जो वहाँ पे magnification produce होगी concave lens की, the magnification produced by concave lens, जो वहाँ पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी इज ऑलवेज लेस देन देयर स्टूडेंट्स वन, क्योंकि कनकेव लेंस जो मैग्निफिकेशन बनाता है प्रोड्यूस करता है मैग्निफिकेशन वहाँ पे प्रोड्यूस सॉरी इमेज बनाता है, वो तो इमेज एक तो वर्चुअल होती है मीन्स अपराइटेड होती है, और उसका साइज भी कम होता है, लेकिन वहाँ पे जो कनकेव लेंस है इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्निफिकेशन लेस देन वन, मीन्स हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है अगर आपके इसके केसेस दो केसेस याद होंगे। और ऊपर से कॉन्वेक्स लेंस, पिछले वीडियो में हमने इसके डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी मैं इसको आपको या उसकी लिंक दे देता हूँ, वो 6 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। और यहाँ पे जो कन्वेक्स अगर हम देखेंगे जब विद इन द फोकस ऑब्जेक्ट होता है, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, विद इन द फोकस ऑब्जेक्ट तो इमेज मैग्नीफाइड बनती है, मीन्स एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होता है। लेकिन एट टू एफ अगर आपको याद होगा केस नंबर 4 में था, एट टू एफ है एम का वैल्यू सेम होता है डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर एम का वैल्यू 1 भी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एम का वैल्यू वहाँ पे इमेज का जो वैल्यू है होता है डिमिनिश्ड होता है, तो मीन्स एम इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस यू कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 or less than 1 or equal to 1, and all these conditions depends upon your students position of the object. Now another important point related to numericals, वो ये है जब भी हम यहाँ पे एक्चुअली जो हमने यहाँ पे वैल्यू की बात की है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली इट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, जब भी हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और जो अमूमन स्टूडेंट्स मिस्टेक एग्जाम में करते हैं, जैसे कि अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में एम का वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया है +2, तो 2 डैट मीन्स पहले आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है विथआउट कॉन्सिडरिंग द साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आता है, यानी कि +2 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो 2 ही निकलेगा, तो 2 मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो डैट मीन्स जो image होगी will be magnified, and +2 here sign now already मैंने आपको बताया sign shows the nature of image, plus sign shows here that image will be virtual and erect, और कहीं पे m का वैल्यू इस तरह आता है m is equal to -1.5, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लिख देते इट इज़ लेस देन 0, और फिर ये तो फिर क्या करते हैं, फिर ये कहते इट इज़ लेस देन 0, यानी कि लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगी डियर स्टूडेंट्स डिमिनिश, लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी हम वैल्यू कंपेयर करेंगे हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है डियर स्टूडेंट्स, तो जब मैं m का एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ मीन्स -1.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसके अंदर एब्सोल्यूट के अंदर होता है, नो डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है 1.5, आप कुछ टाइम आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, देखिए कोसाइन आपको कंसिडर करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू है 1.5 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे जो इमेज होगी डियर स्टूडेंट्स वो फिर से मैग्नीफाइड ही होगी, और ऊपर से यहाँ पे जो साइन का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, साइन हियर इंडिकेट्स दैट द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और जब भी हम कहीं पे भी वैल्यू निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें टेक इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर मिस्टेक कर जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला।